Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Now, yesterday, the volume third ratio analysis, accounting ratio, that is going on in your class, and you have sent me the problem of current ratio, question number 25 and question number 26. Before explaining this one, we have to know the exact meaning of the ratio. Ratio refers the relation, arithmetical relations between the two items. That is called ratio. So, in accounting ratio, whatever the accounting information given in the organization, showing the relations to the others, suppose that current assets, current liabilities, fixed assets, fixed liabilities, revenue from operation. Now, I would like to tell you the current ratio, the meaning of the liquidity ratio, just showing the relation of the short-term financial position of the organization. In two words, you know. दो शब्दों में देखें जो शॉर्ट टर्म्स जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो शो करता है. मीन्स द फर्म इज एबल टू मीट द short-term loans, means showing the ability of the firms. In liquidity ratio or short-term financial ratio, one of the more current ratio that is going on in your class. तो आज बेटा हम आपको अकाउंटिंग करंट रेशियो बता रहे हैं और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26. करंट रेशियो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. जो शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज refers, that is the just we have to pay up, we have to discharge up within 12 months or operating cycle. Current assets and current ratio is equal to current assets upon current liabilities. My dear children, just I would like to tell you the current ratio. This one is the topic of current ratio. Current ratio, the formula current ratio is equal to current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Current liabilities. This one is the formula of this ratio. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Current assets, the items which is converted into cash or cash equivalent within 12 months from the date of balance sheet,
जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 12 महीने के भीतर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारा करंट एसेट्स होता है। उसी तरह से करंट लायबिलिटी जो होती है बेटा, उसे विद इन 12 मंथ जिसे डिस्चार्ज करना हो, तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य करंट रेशियो निकालने का, कि हमारा जो फर्म है, हमारा जो एंटरप्राइज है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब करंट लायबिलिटीज को तुरंत डिस्चार्ज करने की क्षमता रखता है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं। इसलिए करंट रेशियो को और आइडियल रेशियो 2:1 का माना गया है। इसका मतलब होता है आइडियल रेशियो जो 2:1 होता है बेटा, मतलब जो हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का गुना हमारे पास करंट एसेट्स है, ट्वाइस है इसका, 2 गुना, इसी को हम बोलते हैं करंट रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 25 इन योर बुक दैट इज गिवन, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स according to the question, go through the question, the ratio of current assets 32 lakhs to current liabilities rupees 20 lakhs is 1.6:1, means whatever the information given, just the in question this one is the 1.6/1 मीन्स ये रेशियो है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का दिया है 1.6:1, मतलब हमारा यदि करंट एसेट्स 1.6 है तो हमारी रेशियो 1 है। और कितना करंट एसेट्स है? 32 lakhs, 32 lakhs अपॉन ये है 16 lakh एंड 20 lakhs, 20 lakhs ये है, ये इंफॉर्मेशन दी गई। अब आगे देखें, द अकाउंटेंट ऑफ द फॉर्म इज इंटरेस्टेड, accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liabilities। तो अब जो इस फर्म का अकाउंटेंट है या फर्म है, इस बात में इंटरेस्ट रखती है कि हम ऐसा लायबिलिटीज कितना पेमेंट कर दें कि हमारे फर्म की रेशियो दैट शुड बी 2:1 हो जाए। मतलब ये अकाउंटेंट चाह रहा है कि कितनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाए कि हमारा रेशियो एन आइडियल रेशियो हो जाए। अब बेटा इसको कंप्यूट करने के, यही हमें कंप्यूट करना है कि हम कितना पेमेंट करेंगे। देखें जरा सा, फर्ज कीजिए, लेट द लायबिलिटीज बी पेड एक्स, लेट द liabilities be paid, that is X. Suppose that, assume that, आप ये मान लीजिए, थोड़ा अरिथमेटिकल ऑपरेशन है कि जो लायबिलिटी पे की जा रही है वो कितना पे की जा रही है? X। अब आप जानते हैं कि जब लायबिलिटीज पे की जाएगी तो फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर ये हो गया आपका 32 lakhs, 32 lakhs
क्योंकि आपका ये चीज है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है जो ये हमारा सीआर कितना हो जाए, करंट रेशियो कितनी हो जाए, 2:1 का हो जाए। तो -x अपान आपका करंट 20 lakhs -x, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब हमारी रेशियो 2:1 की हो जाए। तो हम जब लायबिलिटी x पे करेंगे बेटा, लायबिलिटी x पे करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है, अगर जो लायबिलिटी पे करेंगे तो हमारा एसेट्स भी कम होगा, करंट एसेट्स भी, तो इक्वल टू 2:1 हो जाए। 2 हो गया। अब इसे जरा सा ये कर लें, इक्वेशन में इक्वल टू करें तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, आप देखें 2 2 जा 4, 40 lakhs minus 2x equal to, therefore hence you can find 32 lakhs minus x। ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब हम कितना पेमेंट करेंगे देखें। इसको ले आइए इधर और उसको उधर लेते जाइए, तो हो जाएगा 40 lakhs minus 32 lakhs इक्वल टू -x plus 2x। इसे हम जब राइट हैंड साइड में लेकर गए तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू 8 lakhs, 8 lakhs। तो अब हम पेमेंट कितना करेंगे, x का हमने वैल्यू निकाल लिया, 8 lakhs पे करेंगे। तो देखिए चलिए वेरिफिकेशन कर लिया जाए। 8 lakhs हम पे कर रहे हैं, $32 lakhs, 32 lakhs minus 8 lakhs। आप देखेंगे कि करंट एसेट्स हमारा 32 लाख दिया गया है, तो इसमें x का वैल्यू निकाल लिए हम। x का वैल्यू रखे अपान 20 lakhs minus 8 lakhs इक्वल टू 24 lakhs अपान 12 lakhs इक्वल टू, आप देखेंगे कि हमारी आइडियल रेशियो हो गई। हमने उत्तर की जांच भी कर ली, 2:1। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 26, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक इसका अपोजिट है। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 5 lakhs टू करंट लायबिलिटी 2.5:1। The accountant of this firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets on credit। कुछ करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट वो करना है इसे। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होगा, हम इसे शार्ट में अब लिखेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, शार्ट में लिख रहे हैं कि इसके पास जो करंट एसेट्स है वो है 5 lakhs। मतलब ऐसे लिखा जाए, करंट रेशियो इक्वल टू
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, CR इक्वल टू CA अपॉन CL। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये 2.5 है इक्वल टू करंट एसेट्स आपका दिया है 5 लाख अपॉन CL। CL इक्वल टू करंट लायबिलिटी निकाल लीजिए, CL इक्वल टू 5 लाख अपॉन 2.5 इक्वल टू 2 lakhs इक्वल टू 2 lakhs। आपने करंट लायबिलिटीज निकाल लिया, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2 lakhs, 2 lakhs हो गया। अब ये कह रहा है अकाउंटेंट कि कितना एसेट्स एक्वायर कर लिया जाए कि हमारी आइडियल रेशियो 2:1 का हो जाए। तो आप वही चीज मानेंगे, लेट दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसेट्स जस्ट लेट द एसेट्स एक्वायर्ड BX। जब एसेट्स हम एक्वायर करेंगे तो BX मानेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 लाख प्लस X। आप क्रेडिट पे लेंगे तो आपकी लायबिलिटी भी पड़ेगी 2 लाख प्लस X इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 जा वही चीज 2 जा 4 लाख प्लस 2X क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें इक्वल टू 5 लाख प्लस X, 5 लाख प्लस X। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 4 लाख को उधर लाइए, X को इधर लाइए, तो X इक्वल टू 1 मतलब 1 लाख रुपए से हम यदि अपना करंट एसेट्स रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल रेशियो हो जाएगा कितना 2:1 का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सटेंट ऑफ 1 लाख का आप एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपका 5 लाख माइनस 1 लाख, आपकी करंट लायबिलिटीज 2 लाख है। वेरिफिकेशन कर लीजिए इक्वल टू 4 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू 2:1। आप कितना 1 लाख रुपए से आप एसेट्स एक्वायर करेंगे और आपका आइडियल रेशियो 2:1 का हो जाएगा। थैंक यू very much.